So, good evening, guys, and I hope that you are doing well and super duper good. So, let's start. Okay. So, guys, from today onwards, we are going to start a series on how to speak English confidently and start speaking, stop thinking. So, this is our episode first. So, today we will discuss about some basic grammars, rule, parts of speech, and the reason that why we fail to speak in English. ओके सो गाइज ये हमारा एपिसोड फर्स्ट है। आज हम बात करने वाले हैं सम बेसिक ग्रामर रूल्स के बारे में बात करेंगे। सम व्हाट इज द रीजन व्हाई वी नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वी नो द कंटेंट एज वेल। So you have seen lots of time yourself that you understand English very well, easily. But when it's come to speak, so you get blank or you take lots of time to speak. So this is you are not alone. Most of the people have gone through that phase, and still some peoples are going through that phase. They understand English, but when it's come to they get stuck, they get hesitate, they forget the content. So why does this happen? We will see later. So before we begin, I will tell you what exactly I'm going to cover in this entire series. So guys, I'll cover each and everything that will take you to become good speaker in English, or you can speak English confidently. First, my focus will be completely on basic grammar, tenses, modal verbs, causative verbs, helping verbs, what to use, when to use V1, V2, V3, what is noun, pronoun, everything I will teach you. In second part, my completely focus will be on your speaking skills. In second part or in second phase, will focus on speaking. Like we have in first part, we understood the rule, grammar. Okay, we understood. We know the basic. So in second part, we are going to speak. We will do a practice of speaking. I'll give you some situation that will be completely on real life based scenario. Or in last part, that is our third part. So that will be focus, or that where I will focus on verbal ability. Means like if you are preparing for any government exam, any campus placement interview, so that will help you a lot. So make sure you do subscribe me right now and hit the bell icon right now so that you don't or any video won't miss you from you. Okay. So without delaying, let's start on our today episode first. Okay. Yeah. So guys, now you think that why we fail to speak in English, even though we know the what to speak. मुझे मतलब we know the content. Why I'll speak, but still I get hesitate. I take lots of time to speak. Now think. So let's see what are the some reasons that stop us to speak in English. So guys, the first most common reason is that many learners struggle with speaking English due to fear, lack of vocabularies, or pronunciation issues. So now you just tell me one thing यार, अगर आप मतलब if you think a lot, आप अगर बोलने से पहले काफी सोच रहे हो लाइक यार कहीं ऐसा ना हो मैं गलत बोल दूं और मेरे पास ये चीज नहीं है और मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। सो आप बताइए मुझे, आप क्या मतलब बिना बोले विदाउट स्पीकिंग विल यू एबल बी टू इम्प्रूव योर सेल्फ? द मोस्ट कॉमन रीजन इज दैट ना, लोग है ना मिस्टेक करने से डरते हैं, मतलब दे अवॉइड मेकिंग अ मिस्टेक, दे डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक। दे थिंक दैट यार मतलब व्हेन आई स्टार्ट विद परफेक्शन। सो गाइस, विदाउट ट्राइंग यू कैन नॉट स्टार्ट विद परफेक्शन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आई हैव टू स्टार्ट वेयर एवर आई एम राइट नाउ सो दैट आई विल बिकम परफेक्ट और आई विल बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं गलत बोलूंगा, दैट्स कंप्लीटली ओके। आप एटलीस्ट बोलिए तो सही, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। लैक ऑफ वोकेबलरी है, नोट एन इशू, प्लीज इंप्रूव योर वोकेबलरी। लर्न डेली मिनिमम 5 to 10 वर्ड्स, एंड आफ्टर दैट उन्हीं 10 वर्ड्स के आप सेंटेंसेस बनाइए, उन्हीं 10 वर्ड्स को यूज करके। प्रोनाउंसिएशन इशू है आपको, नोट एन इशू, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, वी विल इम्प्रूव। ओके, बट एटलीस्ट आपको बोलना तो पड़ेगा, यू शुड टेक एक्शन। सेकेंड, fear of making mistake. As I already told you,
गाइस अगर आप मिस्टेक से भागते रहोगे, गलतियों से भागते रहोगे ना, सो अभी आप जहां पर हो आप वहीं पर रहोगे। ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, इन दिस एंटायर सीरीज आई विल यूज वेरी रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब बिल्कुल बेसिक बनाऊंगा, रखूंगा सीरीज को बिल्कुल बेसिक से, हम लोग चीजें कवर करेंगे। ओके, एंड आई विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ jargons, एनी हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, आई जस्ट ट्राई टू कीप द वीडियो वेरी सिंपल, सो डेट अगर आप बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, focus on communication, not perfection. Means, guys, just understand this by an example. When you आपने जब बाइक सीखना स्टार्ट किया था, टेल मी वन क्लियरली और ऑनेस्टली, आप जब बाइक पर फर्स्ट टाइम बैठे थे तो क्या आपने बाइक को फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से राइड कर लिया था, और यू डिड अ मिस्टेक, आपको मतलब पहले अपने क्लिच लगाया होगा, आपसे स्टार्ट नहीं हुई, अपने क्लिच छोड़ा होगा तो फिर बाइक बंद हो गई। सभी के साथ हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ होता है, बिकॉज वी आर लर्निंग। ओके, सो नाउ यू जस्ट टेल मी वन थिंग, जब आपको बाइक चलाने में काफी एफर्ट्स लगे, आपने बार बार ट्राई किया, आपने आज नहीं डेली ट्राई करते रहे, अनलेस यू नो कि हाउ टू राइड अ बाइक। बट नाउ टेल मी वन थिंग, अब आप जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं, मुझे अभी नहीं आता बोलना। सो गाइस आप सोचिए यार कि आपको अगर बिना बोले आप सीख जाओगे क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि यार बिना बाइक पर बिना बैठे बाइक चला लो, कि बाइक सीख जाओ, सीख जाओगे आप? नहीं सीख पाओगे यार, क्यों? बिकॉज मुझे जो काम करना है मुझे उसको वो काम को करना तो पड़ेगा ना। अगर मुझे बोलना सीखना है तो मुझे बोलना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, वो एक मतलब वो सेकंड पार्ट है, बट फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, डेट डजेंट मैटर। फोर्थ, ठीक है, सो प्लीज आपको जितना आता है जो आता है स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग स्टार्ट, बोलना सीख, बोलना स्टार्ट करिए, जहां से आता है जो आता है स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ भी अगर आपको इशू आता है तो कमेंट में मुझे बताइए, मुझे ये इशू है, मैं आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। फोर्थ, एक्सपेंड योर वोकेबलरी डेली। वैसे अगर आपको वर्ड्स नहीं मिलते बात करने के लिए, आपको समझ में आने क्या बात करूं, सो जस्ट यू कैन रीड एनी न्यूज़पेपर, एनी बुक, और यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एज वेल, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन vocabulary. So just try to learn at least 5 to 10 vocabularies on daily basis. Why? When you have a word, जब आपके पास वर्ड होंगे ना बात करने के लिए, आपके पॉकेट में वर्ड होंगे, सो आप उन वर्ड्स को यूज करोगे, बोलोगे। सो जब आप उन वर्ड्स को बोलोगे सो ऑटोमेटिकली यू विल स्पीक इन इंग्लिश। जैसे हम लोग कॉमन मतलब बोलते हैं मैं जा रहा हूं, मैं ये नहीं करता। ठीक है, सो जा रहा हूं मतलब गो, जा रहा हूं गोइंग। ठीक है, सो एटलीस्ट आप एटलीस्ट कुछ वोकेबलरी सीखिए, डेली सीखिए, और जो वोकेबलरी आप सीख रहे हो उन्हीं वोकेबलरीज को आप सेंटेंस बनाइए, उन्हीं को यूज करके। दैट विल हेल्प यू टू स्पीक एज फर्स्ट सेकंड, उससे आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी। ओके, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है हमारी? समटाइम्स द फियर ऑफ जजमेंट और प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंस कैन क्रिएट अ मेंटल ब्लॉक। It is essential to recognize these feelings and address them head on. Guys, ये सभी के साथ होता है, everyone had a bad experience in their past. सभी के पास बहुत बेकार एक्सपीरियंस थे, मतलब दे, मैं तो यार बोल भी नहीं पाता था व्हेन आई वाज इन स्कूल, इन कॉलेज। ओके, सो आई लर्नड इंग्लिश आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, सो मतलब मुझसे तो ज्यादा बेकार आप नहीं होंगे ना। So, अगर इफ आई कैन टीच यू, इफ आई एम टीचिंग, इफ आई एम टेलिंग यू, सो देन यू कैन डू बेटर देन मी एज वेल। बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहिए बट परसिस्टेंसी इज मैटर। ओके, सो आपको अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आपको समझ नहीं आना कि यार गलत था, मैंने वहां पे ट्राई किया था और मैं बोल नहीं पाया, और अब मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? मैंने एक बार ट्राई किया था। यार अगर कोई एक चीज एक बार करने से आ जाती तो हर कुछ कर लेता, सब कुछ कर लेता। ठीक है, इट टेक्स एफर्ट यार, कंसिस्टेंट एफर्ट लगने हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तभी भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। और ठीक है, और कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। सो अगर आपको जजमेंट करता है, यार करने दो ना, उसकी लाइफ से आपकी लाइफ नहीं चलने वाली। अगर वो जज आपको कर रहा है तो उसके जज करने से आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज मेरी लाइफ है,
इसको मैं ही चलाऊंगा, मेरी जो लाइफ के बिल्स है वो मैं ही पे करूंगा, ठीक है। अगर मुझे इंग्लिश की वजह से जॉब नहीं मिल रही है और मैं जजमेंट के बेस पे बैठा हूं, तो मैं जजमेंट के बेस पे बैठा नहीं रहूंगा, बिकॉज मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। अब कुछ भी अगर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? जजमेंट प्रीवियस जो हुआ सो हुआ, सीखो यार, आगे बढ़ो, मूव ऑन, ठीक है। लास्ट, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स विद एक्सपीरियंस। स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एज योर कंफर्ट लेवल ग्रोज। यार सिंपल सी बात, अब एक चीज समझो, इसको आराम से समझाता हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना, सो जस्ट हैव अ नोटबुक और उस पर अपना डेली रूटीन लिख लो, सुबह से शाम तक क्या करते हो आप, ठीक है। वो लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको है ना उसी रूटीन को है ना डेली अपना इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हैव अ नोटबुक, नोटबुक लिया आपने, उस पर डेली अपना डेली रूटीन लिखा आपने। अगर आप जॉब करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर पे वट एवर यू डू, ठीक है। अब उसी रूटीन को आपको डेली है ना शाम को या दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना है इन इंग्लिश, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यार, चीजें ना स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आप अभी यहाँ पे हो और इफ यू वांट टू गो देयर, सो यू कैन नॉट गो देयर डायरेक्ट, you have to go step by step, you will go step by step, first, second, third, fourth, hope you got it। so सबसे इजी तरीका आपको बता रहा हूं मैं, आप अपना डेली रूटीन लिखिए इसमें, अंडरस्टूड। और उसी को आप डेली है ना बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, फोन के सामने खड़े हो जाइए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, बट एट लीस्ट बोलना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, बिना बोले नहीं कर पाओगे। सो नाउ आई एम जस्ट होपिंग दैट कि आपको समझ आएगा व्हाट आर द रीजन दैट स्टॉप अस टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सो मेक श्योर यू हिट द फॉलो राइट सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अहेड। सो टिल नाउ अभी हमने समझा कि हमारे इंग्लिश में क्या इशू हमें आते हैं, हम क्यों नहीं बोल पाते, ठीक है। अब हम समझते हैं ग्रामर क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली ग्रामर मीनिंग। So grammar is the set of rules that explain how words are used to form correct sentence in English. So guys, एक सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं, ग्रामर हमें ये बताता है कि कहाँ पर आपको कौन सी वर्ब लगानी है, कहाँ पे आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कब किसके साथ कौन सा वर्ड यूज करना है। आई के साथ हैज लगाना है, हैव लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है। सो ऑल एवरीथिंग जो ये सब हमें जो बताता है, ये हमें ग्रामर के थ्रू पता लगता है। It helps you communicate clearly, correctly and confidently. So सिंपल है, जब मुझे पता होगा मुझे क्या बोलना है, मुझे पता है कि रूल क्या क्या है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बिल्कुल सही बोलूंगा। आई होप यू गॉट इट। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाई ग्रामर मैटर्स। Ensure correct sentence formation, prevent misunderstanding, improve writing and speaking, and helps in exam प्रोफेशनल। सो गाइस जस्ट टेल मी वन थिंग, एज आई टोल्ड यू, ग्रामर जो होती है वो हमें सिंपल बताती है कि आपको कब कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। कैसे वो हम आगे देखेंगे, बट अभी आप ये समझो, ग्रामर हमें कहाँ पे कौन सा वर्ड सब्जेक्ट यूज करना है वो बताता है, ठीक है। नाउ कॉमन मिस्टेक लर्नर मेक्स, ट्रांसलेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज। यार मुझे अगर बोलना है कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा, या उसने मेरे साथ ये किया था एंड आई विल पनिश हिम, ठीक है। अब मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको पनिश करूंगा, या आई विल गिव हिम व्हाट एवर यू वांट टू से। हम लोग क्या करते हैं ना, वी जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब ट्रांसलेट करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, और वट एवर, ठीक है, विदाउट एनी रूल। आप बोल तो लोगे एंड पीपल समझ भी जाएगा, बट होगा क्या ना, जब आप उसको अगर किसी एग्जाम में, या अगर आप प्रॉपर ग्रामर नहीं सही होगी, तो अगर ग्रामर आपकी सही नहीं होगी तो मे बी आपके एग्जाम में मार्क्स कट हो जाए, प्लेसमेंट आपका रुक जाए, ठीक है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ग्रामर, राइट ग्रामर। ग्रामर के बिना मतलब आप सही, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडिया में, अगर आप देखोगे मोस्टली पीपल डजेंट और डोंट यूज एग्जैक्ट राइट ग्रामर, दे हैव सम मतलब 90-20 मिस्टेक, ठीक है। बट अगर आप एग्जाम में हो, प्रिपेयर करो प्लेसमेंट के लिए, ओके, सो आपको प्रॉपर ग्रामर का यूज आना चाहिए, वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड, रॉन्ग टेंसेस यूजेस, मींस मुझे बोलना है कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा और मैं यूज कर रहा हूँ आई गो टू कॉलेज। सो दिस इज हाउ वी यूज
रॉन्ग सेंटेंस। ओके, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, लाइक एज ए टोल्ड यू, आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं, बट मैंने यूज किया आई इज गोइंग। सो आपको यहाँ पे ग्रामर में बताया था कि किस वर्ब के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज करना है। सेकंड, नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर, लाइक सब्जेक्ट को पहले लगा दिया वर्ब से, वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, या वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दिया, ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले लगा दिया। सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। वो हमें कहाँ से पता लगेगा? हमें ग्रामर से पता लगता है। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। जस्ट पॉज दी वीडियो, आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप इन सबको देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक फाइंड आउट करने के बाद वो मुझे कमेंट में आप बताइए। ही गो टू स्कूल एवरीडे, ये गलत है। क्यों? ही इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम लोग एस या ई एस की फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के साथ। सो ही गोज टू स्कूल। शी आर गुड फ्रेंड नहीं, शी आर अ गुड सिंगर नो। आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, नॉट सिंगुलर के साथ। सो ही और शी सिंगुलर है, हम इसके साथ इज यूज करते हैं। तो शी इज अ गुड सिंगर। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई हैव सीन हिम, सो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर। सो हमारा इज हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, और एम आर यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ। सो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। मैंने बता दिया आपको, ठीक है, बट अगर आपने पहले सो चेक किया हो तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि किस में क्या गलत है, क्यों गलत है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। So guys, now we will see what is parts of speech. Parts of speech is not just, मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बट एक थोड़ा सा बेसिक चीज है ग्रामर की। अगर आप उनको समझ लोगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में इजी रहेंगे, और आपको पता लगेगी कब कहाँ पे आप, अगर आप कुछ यूज भी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन। नाउन जो किसी व्यक्ति, प्लेस, चीज के बारे, स्थान के बारे में बताती है, वो हमारी नाउन होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन, नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? जनरल आइटम, लाइक एग्जाम्पल बॉय, सिटी, बुक, देज आर द कॉमन थिंग दैट आर अवर कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, लाइक इट कुड बी एनीथिंग स्पेसिफिक। मैं दिल्ली गया था, तो डेली वहां प्रॉपर नाउन हो जाएगा हमारा। अंकित, मुझे स्पेसिफिक अगर आप बात कर रहे हो तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप, फैमिली, टीम, फ्लॉक, एवरीथिंग। सो अगर आप ग्रुप के बारे में बात करोगे सो दैट विल बी योर कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? हमारी जो हमारी आइडियाज और फीलिंग के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल हैप्पीनेस, फ्रीडम, करेज, सैडनेस, एंजॉयमेंट, ब्यूटिफुल। ओके, इट्स अ गुड, बैड। तो दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो कॉमन नाउन क्या होगी? हमारे जो हमारा कॉमन चीजें होती है। ठीक है, एग्जांपल जनरल नेम्स। प्रॉपर नाउन आप किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करो। कलेक्टिव नाउन क्या होगी? हमारी जो हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स के बारे में बताता है। नाउ लेट्स एग्जांपल, द बॉय इज रीडिंग। बॉय एज वी डिस्कस इन कॉमन नाउन, इट्स अवर कॉमन नाउन। ठीक है, मुंबई इज अ बिजी सिटी, मुंबई इज अ प्रॉपर। मैं किसके बारे में बात करूं? मुंबई के बारे में बात करूं। मैं सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिटी के बारे में बात कर रहा हूं, बट मैं मुंबई के बारे में, सिटी और मुंबई के बारे में मैंने बोला। देयर आर लॉट्स ऑफ सिटी डेट आर बिजी, और डेट आर कंजस्टेड, डेट आर, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैफिक इन मोस्ट ऑफ द सिटी। तो मैंने किसी यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं लिया। सो इसलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मुंबई, बट यहाँ पे मुंबई हमने बोला। So, मुंबई इज अवर स्पेसिफिक सिटी, प्रॉपर सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और टीम, टीम क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। लव एंड ऑनेस्टी आर इंपॉर्टेंट। लव क्या बता रहा है? फीलिंग। ऑनेस्टी क्या बता रहा है? फीलिंग बता रहा है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गाइज, एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज, आपको बताना है कौन सी क्या नाउन है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा डेली की हमारी क्या नाउन है, जॉय क्या नाउन है, पैक का क्या नाउन है, टीचर क्या नाउन है हमारे। एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, और कॉमन नाउन है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द pronoun definition. A pronoun is a word used in place of noun to avoid repetition. नाउन क्या था हमारा? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगह लेता है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। प्रोनाउन क्या हो जाएगा? जो नाउन की जगह लेता है, टू अवॉइड रिपीटिशन। हाउ? लेट्स सी why it's important, make sentence shorter and smoother. Now prevents repetition. How?
देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन. पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल मतलब when you're talking about the ourself, like I, you, refer to a person or thing. Example: I, you, he, she, it, we, they. इस if I tell you in simple word, so ये सब्जेक्ट जो काम को करता है, पर्सन के बारे में बात करें, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, पर्सनल नाउन, पर्सनल प्रोनाउंस. सेकंड, पोजेसिव प्रोनाउंस. सो गाइस, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब उस पर किसी चीज का अधिकार होना. पोजेसिवनेस, ठीक है. सो ओनरशिप दिखाना. रिप्लेस द नाउन. एग्जाम्पल: माइन, योर, हिज, हर, ओवर, देयर्स. दिस बैग इज माइन. सो यहाँ पे जो माइन है हमारा, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है हमें यहाँ पे that कि दिस इज द possessive pronouns. Now reflexive refers back to the subject. Example: myself, yourself. खुद के बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्ट के मतलब अब सब्जेक्ट पे जा रहे हो, ठीक है. लाइक दिस इज माई, आई डिड इट बाय माई सेल्फ. मैंने खुद से किया. यू डिड इट योर सेल्फ. यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ. ठीक है. सो खुद से आपको करना चाहिए, ठीक है. तो तुम्हें काम अपने खुद से करना चाहिए. आप मतलब रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है. सो इट्स अवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई डिड इट माई सेल्फ. मैंने खुद से किया. सो यहाँ पे माई सेल्फ क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमोन्स्ट्रेट करना मतलब बताना कि ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ. पॉइंट आउट नाउन विदाउट नेमिंग देन. आप किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हो विदाउट नेमिंग. लाइक दिस इज माई कार, दिस इज थिंग, दैट दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी हैप्पी, दिस इज वेरी बैड. सो मतलब आप वहां पे कुछ नाम नहीं ले रहे हो, बट आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो. दिस इज अमेजिंग. सो नाउ लेट्स सी. दिस इज अवर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउ नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, लाइक हु, whom, whose, which, what, do, did. Okay, so these are our interrogative pronoun जो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं हम लोग. Who is at the door? Who are you? Where are you going? What are you doing? What do you do? All these are interrogative pronouns. Sixth, relative pronoun. Relative means connect करते हैं clauses को. Example: who, whom, whose, which, that. Like the boy who is running is my friend. The boy who is running is my friend. The boy who is teaching, who is studying, is my brother. The girl who is going is my friend. सो मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो क्लॉजेस को. क्लॉजेस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनेटिव मतलब रेफर टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल. एग्जांपल: एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, फ्यू, मेनी. एवरीवन इज हियर. मतलब आप किसी वहां पे स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉन स्पेसिफिक, दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर. ठीक है. आप, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, एनी स्पेसिफिक थिंग. उनके लिए हम यूज करते हैं आई इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो आई होप दैट यू गॉट इट व्हाट इज द pronoun and what are the types of pronouns. So basic rule. Now let's see what is the our next. Now how to replace pronoun with noun. Basic rule. A pronoun replace a noun to avoid repetition. How? Like Reena is reading Reena book. अब guys आप मुझे बताइए इसमें, रीना इज रीडिंग रीना बुक. रीना रीना की बुक पढ़ रही है. ये अच्छा लग रहा है? मतलब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, रीना रीना की बुक पढ़ रही है. अब इसको हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया नाउन को प्रोनाउन के साथ. रीना पर्सनल था, तो हम आप उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम अगर अपनी बैक स्लाइड में पीछे जाके देखेंगे तो क्या आता है हमारा? पर्सनल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं रेफर टू के लिए? आई, यू, शी, ही. तो यहाँ पे रीना पर्सनल है नेम, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? शी. अब रीना रीना की बुक पढ़ रही है तो पॉजेसिव यहाँ पे आ गया. तो पॉजेसिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? चलो देखते हैं पीछे चल के. पॉजेसिव के लिए हम यूज करते हैं माइन, योर, हिज, हर्स, अवर, देयर, दिस बैग. सो यहाँ पे हमने रीना, अगर यहाँ पे बोलोगे रीना रीना की बुक पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग हर बुक. या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, रीना इज रीडिंग हर बुक. ठीक है. सो हमने यहाँ पे नाउन को रिप्लेस कर दिया किससे? प्रोनाउन से. स्टेप्स कैसे हम इसको रिप्लेस करते हैं? आइडेंटिफाई द नाउन यू वांट टू रिप्लेस. ओके. फर्स्ट देन आपको पता करना कि वो नाउन किस टाइप की नाउन है. पर्सन है, ऑब्जेक्टिव है, प्लेस है, ग्रुप है. अब यहाँ पे हमने जो इसको रिप्लेस किया हमारा क्या था? पर्सन था. ओके. तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? चूज द एप्रोप्रिएट
प्रोनाउन। लाइक पर्सनल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही शी इट, यू वी दे, इट, ओके। पॉसेसिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिज हर इट्स देयर माइन, ओके, योर। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव क्या था हमारा, जो हम किसी पर्सन के बारे में, उसके बारे में हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, रेफर बैक टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे देखोगे रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, माई सेल्फ, ठीक है। सो दीज आर आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव के लिए हम हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, दीज आर आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हाउ टू रिप्लेस अ नाउन विद द प्रोनाउन। एक्सरसाइज, सो गाइस दिस आर द एक्सरसाइज। आपको ये उसको रिप्लेस करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने क्या पे क्या किया, ठीक है। रीना इज रीडिंग, रीना बुक, ये हम लोग कर चुके हैं। सब देखते हैं, द बॉय आर प्लेइंग विद द बॉयज टॉयज। अब इसको आप मुझे ट्रांसलेट करके बताइएगा कमेंट में। आई विल वेट फॉर योर आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ नाउन, दिस इज माइन, हु इज कमिंग। ये हमारे किस टाइप की नाउन है, माइन क्या हमारे किस टाइप का होगा, कमिंग हमारे किस टाइप का होगा, हु, यहाँ पे हु हमारे किस टाइप की प्रोनाउन है, मुझे बताइएगा आप। माइन किस टाइप की प्रोनाउन है, तो हम देखते हैं हु हमारे किस टाइप का प्रोनाउन था, इंटरोगेटिव, ओके। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। सो अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। माइन के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी, ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, सो गाइस आई होप यू गॉट इट, what is the noun, what is pronoun, and how to replace the noun with pronoun. So now guys, now we will see what is adjective. So adjective क्या होता है, an adjective is a word that describe or modify a noun or pronoun. It tell us which one, what, kind, how, many और how much, मतलब हमें चीजों के बारे में बताता है। मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को, उनके बारे में उनकी डिटेल में बताता है, कौन, कहाँ, क्या, कब, कैसे। So why it's important, make sentence more descriptive and interesting, helps in writing and speaking clearly. Let's see in detail. Sorry. So types of adjective. Descriptive adjective क्या होता है, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। लाइक describe the quality of a noun, like example, beautiful, tall, intelligent, soft। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक मैं बोलूंगी, हाउ इज दिस माउस इज गुड। सो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माउस की बात कर रहा हूँ, और माउस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अब आपको उसके नाम से पता लग रहा होगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जांपल, फ्यू, मैनी, सम, सेवरल एंड, ओके। सो हम एक्चुअली यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं, एक, दो, तीन, दो, तीन। तो अगर आपको क्वांटिटी के बारे में बात करना, हम यूज करेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको बात करना है डेस्क्रिप्टिव के, क्वालिटी के बारे में, तो हम यूज करते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सो नाउ लेट्स सी सम मोर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक नाउन, जैसे हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोस। लाइक आई लाइक दिस बुक। अगेन मतलब अगर आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। पॉजेसिव, ओनरशिप के बारे में, माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर। दिस इज माई बैग, दिस इज माई कार, इट इज हर बुक, इट इज हर हाउस, इट इज हर हिज बाइक। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव, यूज्ड इन क्वेश्चन, विच, व्हाट, हुज। विच बुक इज योर्स, हु आर, वेयर आर यू गोइंग, हु इज दिस कार, हु कार इज दिस, ठीक है। विच बुक इज योर्स, इज दिस योर कार, इज दिस योर बुक। नेक्स्ट, proper adjective derived from proper noun. Example, Indian, Shakespearean and American. शी लव्स इटालियन फूड, मीन्स ये हमारा प्रॉपर नाउन से हमने क्या उसको क्या किया, डिराइव किया। इटालियन, इटालियन क्या होता है हमारा, इज सिटी, कंट्री का नाम है। तो यहाँ पे हमारा क्या, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, जो हमारा प्रॉपर नाउन से आएगा। अब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपेयर नाउन, कम नाम से समझ में आ रहा है, कंपेयर, बिगर, टॉलर, स्मार्टर। सुपरलेटिव, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट,
माई हाउस इज बिगर देन योर्स, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। सो गाइस, जब भी आपको किसी से कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव। So guys, I hope that you got it. What is noun? What is pronoun? How to replace noun with pronoun? What is adjective? And types of adjective. So these are some exercise that this for you and that will help you to understand adjective in more detail. Identify the adjective in the sentence. The bright sun is shining. I have 3 books. That car is expensive. अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन सा हम लोग एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। द ब्राइट, ब्राइट क्या था हमारा, हम क्वालिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, क्वालिटेटिव। ओके, यहाँ पे हमारा है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आई हैव 3 बुक्स, 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। डेट कार, किस कार में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो नाउ गाइज, so guys, for today, and that's all for today class. Today we have learned, we discuss what are the main reason that stop us to speak in English. We discuss about the what is grammar, importance of grammar. We see what is noun, pronoun, adjective, and types of adjective. So guys, if you like this video, so make sure you hit the subscribe button right now, hit the bell icon, and share this with your friend. And if you have any question, if you did not understand anything, please do comment. I'll answer your question. Okay. And in our next video, हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में और कंजक्शंस के बारे में। ओके, सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज पुट इन दी कमेंट बॉक्स। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।